Assalamu alaikum and welcome to our special episode of Mindful Motherhood, part of the Brain Awareness Week in collaboration with IBRO and Dana Foundation. I'm Yusra Salim, and today we have a very special guest, a mother who will share her journey through pregnancy, stress, and its impact on brain health, both for herself and children. Motherhood is a beautiful yet challenging journey in Pakistan, where cultural expectations, family dynamics, and societal pressure often adds to the stress. It becomes even more crucial to talk about how women navigate this phase while maintaining their mental and emotional well-being. So let's welcome our guest, Nida Khan. Assalamualaikum. I'm Walaikum excited to salam. be here, and I really wanted to share my experience with everyone because, yeah, it gives you strength when you talk about each other and when you learn from others. So, yeah, I hope I'll be giving strength or I'll be impacting somebody's life right now if they're listening to this podcast. Thank you, Nida. Let's start from the beginning. Pregnancy is a transformative phase, as you know, but it can also be very overwhelming. Can you share your experience with stress during pregnancy? Yeah, sure. So I'm a mother of two beautiful kids, and so this means I have been through pregnancy two times, and both of my pregnancies were very close. So that is another stress कि वो जो जब क्लोज प्रेगनेंसीज होती हैं तो वो आपको एक अलग ही स्ट्रेस देती हैं. तो पहले फर्स्ट माय फर्स्ट प्रेगनेंसी वाज इन द टाइम ऑफ कोविड and बहुत ही early I conceived from the day I got married. So वो टाइम पीरियड बहुत कम था अपने हस्बैंड के साथ बॉन्ड करना, नई जगह को एम्ब्रेस करना और नए रिश्तों के साथ मिलना. तो एंड देन आई गॉट प्रेग्नेंट और उसी में आई वाज आल्सो वर्किंग इन द हॉस्पिटल. तो जब ये सब हुआ तो उसमें व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट तो उसी के बीच में कोविड आ गया. और मैं क्योंकि हॉस्पिटल में काम करी थी, आई वाज वर्किंग इन हॉस्पिटल, तो वो एक अलग स्ट्रेस था. और यू नो प्रेगनेंसी एक अलग स्ट्रेस था, नए रिश्ते, नए लोग, नई जगह, वो एक अलग था. तो इट वाज और फिर दूसरा वाला तो इट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट. आई एम गोना टॉक अबाउट इट फर्दर ऑन. तो दूसरी वाली प्रेगनेंसी तो बिल्कुल ही डिफरेंट थी फर्स्ट वाली प्रेगनेंसी से. So yeah, it was a mixed emotion, a roller coaster, I would say. ऐसा roller coaster कि you were going spiral and spiral. So yeah, it was a very, very, very unique, and it was very stressful, and it was beautiful, of course. I got two beautiful kids with me right now. So yeah. Sorry, that sound intense. What do you feel was the biggest stressor of all for you? Uh, First of all, I would say every parent who get this news, they start thinking about finances. Belonging to a developing country where everything is unexpected. हमें नहीं पता कोविड का क्या असर होता है, कितने बिजनेस किस तरह से खत्म हो गए हैं, क्या बिल्कुल ही डिफरेंट दुनिया आ गई है. इट्स ऑल अबाउट एआई टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग. तो आई थिंक फर्स्ट तो बड़ा स्ट्रेस हम दोनों के लिए था फाइनेंसेस के बारे में सोचना. दूसरा आई वुड से ब्रेस्ट फीडिंग. क्योंकि मुझे मैं आई हैड अ वेरी intense sort of experience in both my pregnancies related to breastfeeding. And as of now, right now in Pakistan, I don't think people are taking it very seriously. But हर हॉस्पिटल्स में आपको सही गाइडेंस नहीं है, आपको बताया नहीं जाता हाउ टू होल्ड अ बेबी, हाउ यू कैन work on yourself. First time I had an issue with
माय मिल्क प्रोडक्शन, उसमें मुझे कोई हेल्प नहीं थी। और मेरा स्ट्रेस, क्योंकि मुझे इतना स्ट्रेस था, तो मेरा स्ट्रेस खत्म करने के लिए मेरे घर वालों ने कहा छोड़ो यार, फीडर दो, सही है ना, बच्चा रो रहा है, अब क्या, इस पूरे सिनेरियो में माय मदर इन लॉ, वो उनको भी बच्चे पाले हुए एक सदी, मतलब 30-40 साल से ऊपर हो चुका था। शी सेड आई डोंट रिमेम्बर इट ऑल, मुझे खुद याद नहीं आ रहा, आई डोंट हैव माय मदर। तो इट वाज वेरी डिफरेंट फॉर मी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ऑब्वियसली नए रिश्ते थे, यू कांट गो टू सम पर्सन, मतलब शी वाज वेरी कंफर्टिंग मी एट दैट टाइम, लेकिन ऑब्वियसली मेरा फ्रैंकनेस उनसे इतनी नहीं थी उस वक्त कि मैं जैसे मेरी माँ से मेरी हो सकती थी। लेकिन फिर भी वही मैं कहूँगी, स्ट्रेसेस वर फाइनेंसेस एट फर्स्ट, सेकंड ब्रेस्ट फीडिंग, एंड आई हैव मेरी दोस्तों ने मेरी मदद की जो इस चीज से गुजर रही थी। एंड आई बिलीव के लोगों को, अभी भी बहुत लोग हैं जिन्हें नहीं आता प्रॉपरली ब्रेस्ट फीड करना, विच इज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट जो माओ को होनी चाहिए, बट ड्यू टू द सोसाइटी का एक वो चेंज हो गया है प्रेशर, कि भाई अब फीट, मतलब टॉप फीट पे डालना इज इजियर, व्हाई टेक दिस मच pressure on yourself and waste so many hours holding a baby and feeding them. तो हाँ, ये यार, ये दो स्ट्रेसेस थे युसरा फॉर मी, जो कि जिन्होंने मुझे काफी काफी ज्यादा परेशान किया। Interesting. That's intense. Research shows that maternal stress impacts brain health not just for the mother but also for the baby. How do you manage stress, and did you notice its impact on your own mental health? Uh, yes, definitely. A constant state of nausea. When you're in constant state of nausea, you haven't slept for days. Because sometimes, what's going to happen keeps you up in the night. Okay, bhai, this thing is inside me, it has to come out. So how, it's going to how it's going to be, क्या होगा उस वक्त, किस तरह होगा, all you have heard that it hurts and तो स्ट्रेसेस उस वक्त आपका मेंटल हेल्थ आपकी क्या चल रही होती है। दूसरा ये कि आप अपने बारे में, व्हेन यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग, आपका ब्रेन जो है ना वो आपको शट कर देता है, आपने अपने बारे में और किसी के बारे में नहीं सोचना, जस्ट स्टॉप, just think about that little life that is going to come in the world, and your brain just starts thinking about that. मेरे लिए मेरी एंजाइटी अब तक, my kids are one of my son is 4 years old and my daughter is 2 years old, but क्या कहते हैं कि वो एंजाइटी लेवल जो है ना, मुझे लगता है वो ही वाला है जो जब they were born, क्योंकि वो एक खाना खाया नहीं खाया, खाना खिलाना है, दूध पिलाना है, कपड़े चेंज करने हैं, ओ गीला कर दिया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सो और मैं, आई एम अ पर्सन हु लव्स प्लानिंग, who is sorted, who plans before going into some place, before doing anything, and pregnancy ने मुझे ये बताया कि everything is unexpected, your kid can do anything, so you are completely vulnerable, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि क्या हो गया। तो मेरा और मेरे हस्बैंड का रिलेशन भी इस चीज से काफी इफेक्ट हुआ, क्योंकि मुझे स्ट्रेस होता था अगर मैं कोई चीज भूल गई हूँ, ब्लैंकेट भूल गई हूँ, कुछ हो गया है, एंड आई यूज टू टेक इट आउट ऑन हिम कि व्हाई आर यू नॉट सो प्रॉम्प्ट ऑन दीज थिंग्स, और इस तरह से सारा कुछ। तो ये स्ट्रेसेस जो थे वो हर बंदे के साथ, आई हैड दिस डिफरेंट एजिटेटेड बिहेवियर विद एवरीवन। तो वो आई थिंक आई एम स्टिल इन दैट स्टेज, लेकिन वो चीज जो है किसी और तरह से फॉर्म ले रही है, बट हूँ मैं उसी स्टेट में, एंजाइटी वाले। और स्ट्रेसेस को कम करने के लिए मैं ये उस टाइम पे मैं योगा करती थी, एक्सरसाइज करती थी, mindfulness, I used to sit, breathing technique,
I used to talk to my husband a lot. He used to be there for me. क्योंकि मेरी जो सेकंड प्रेगनेंसी थी वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस थी, बिकॉज माई सन वॉज ओनली 10 months old when I started expecting again. So I was not ready to be someone else's mother. बिकॉज अभी एक बच्चा 10 महीने का है और मेरा दिमाग अभी उसी को नर्चर करने के ऊपर है। और फाइनेंशियल सिचुएशन का तो कुछ पूछो ही नहीं। तो वो एक अलग ही स्ट्रेस है जो आपको और आपके हस्बैंड को रहता है। उसके बाद तो सेकंड प्रेगनेंसी जो थी वो अब मेरे ख्याल से व्हेन स्टिल जब मुझे मेरी बेटी मिली है तब भी आई वाज नॉट रेडी टू बी हर मदर। क्योंकि वो अभी एक 10 महीने का बच्चा ही दिमाग में घूम रहा था जिसे मैं घर पे छोड़ के आई हुई हूँ लेबर रूम में, और बस उसके पास जाना है। क्योंकि वो कैसे सोएगा, वो कैसे रहेगा, वो सब चल रहा था। तो आई हैड अ वेरी हार्ड टाइम कनेक्टिंग टू माई डॉटर एट फर्स्ट, और उसके एमिड में बीच में ब्रेस्ट फीडिंग। तो वो सारे स्ट्रेसेस बहुत ही मुश्किल थे। और मेरा पोस्टपार्टम सेकंड प्रेगनेंसी में वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट। आई इवन हैड सुसाइडल थॉट्स। For first 3 months, it was very intense. It was very hard for me to cope with my motherhood. So, उस time पे my husband helped me a lot. So you need somebody who is there with you feeling the same emotion. अगर तो वो बंदा जो आपका साथ आपकी चीजों में सेम चीजें एक्सपीरियंस कर रहा है वो आपके साथ होता है, सो यू स्टार्ट टू कनेक्ट विद देम, और वो आपको उस चीज से बाहर निकाल सकता है। तो हाँ, एक्सरसाइज वाज मतलब मेरे लिए बहुत जरूरी था कि मैं योगा करती थी, और योगा का टाइम मुझे निकालना होता था। और जो है वो मेरे हस्बैंड के साथ वी यूज टू स्पेंड आवर्स टॉकिंग टू ईच अदर, ट्राइंग टू फिगर आउट कि भाई व्हाई आई एम क्राइंग एंड व्हाई दिस थिंग इज ट्रिगरिंग मी। और छोटी छोटी चीज और घंटों के लिए आपको रोना आता है आपके बेबी ब्लूज में। बहुत ही मुश्किल था, बहुत ज्यादा मुश्किल था। नाउ दैट आई एम recalling it, so it was very intense. Yes. It was very emotional, Nida. Fast forward to after childbirth. Early childhood is crucial for a baby's brain development, as you know. Did you notice how your own mental state influence your child well-being? As you are telling me all of the roller coaster, how do you think it has influenced your child well-being? That's a very good question, because my mother-in-law helped me throughout this journey, because I had never taken care of any kid in my life. So I had a baby and I had no idea what to do with it. I didn't even know how to hold a baby. I didn't even know how to, get a baby to comfort level where he starts feeling cozy and stop crying. So she was there and she taught me everything from holding a baby and keeping them close to yourself. This is what they need. So she told me कि उन्होंने मुझे एक बात कही थी पहले ही दिन, जो जिसने मुझे बहुत हेल्प की। उन्होंने मुझे कहा कि योर इमोशंस आर गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड, आर गोइंग टू बी एब्जॉर्ब्ड बाय योर चाइल्ड। whatever you are feeling they will feel it. Okay, तो क्योंकि there is a connection, so you have to be calm, you have to be less anxious, so that he and she can be less anxious. तो यार ये होता था युसरा के I आप क्योंकि आप आई हैड अ 36 hour लॉन्ग लेबर एट मेरा बेटा बेटा जो मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी 36 hour लॉन्ग का लेबर था। आई हैड स्पेंड 1 and 2 nights एट इन द लेबर। वो बहुत ही वो इट वाज मुझे ऐसा लग रहा था मैं जिंदा बाहर नहीं आऊंगी यहाँ से। अब मैं शायद जिंदा बाहर नहीं जा सकती। मैं एक टाइम आया था कि मैं चुप हो गई थी। तो मुझे हो रहा था कि बस अब मैं शायद ही बाहर जा पाऊँ। तो वो ट्रॉमा जो था फर्स्ट प्रेगनेंसी में वो इतना सिवियर था कि मैं अपने बच्चे से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। ऑनेस्टली मैं नहीं कर पा रही।
जिसकी वजह से मेरा बच्चा बहुत ज्यादा, ही यूज्ड टू क्राई अ लॉट। वो बहुत रोता था, वो बहुत ज्यादा एंशियस रहता था, क्योंकि उसको उसकी माँ कंफर्ट नहीं दे पा रही थी। तो मुझे टाइम लगा, बहुत टाइम लगा, लाइक 2 मंथ्स मुझे लगे। उसके बीच में आपकी ब्रेस्ट फीडिंग, अब वो जाहिर है मैं खुद इतना एंशियस हूँ, तो मैं किस तरह से उसको फीड करा पाती। तो वो, और आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पर जो है वो अ, एक ह्यूज गैप है जिसको हम भरने की कोशिश कर ही नहीं रहे हैं, कि एक माँ को एक काउंसलर की जरूरत होती है जब वो डिलीवरी रूम से बाहर आती है। इसलिए क्योंकि वो जिंदगी मौत की लड़ाई लड़के आई है। लिटरली इट फेल्ट लाइक दैट आई वाज फाइटिंग फॉर माय ओन लाइफ एंड द लाइफ दैट आई एम कम ब्रिंगिंग इट टू द वर्ल्ड। तो वो है ही नहीं चीज हमारे पास ना। हमारे पास अनप्रोफेशनल सिस्टम है जिसमें यू रिलाई ऑन योर स्पाउस टू गिव यू कंफर्ट, यू रिलाई ऑन योर मदर टू गिव यू कंफर्ट, और वो बेचारे फिर आगे से कुछ और जुमला बोल दें या कुछ कर दें, तो यू ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग बैड अबाउट इट बिकॉज यू हैव अ इमोशनल कनेक्शन विद देम एज वेल। ये जो ट्रॉमा था वो उसने मुझे सेकंड प्रेगनेंसी में पूरी दिन रात जगा के रखा था, कि भाई अब क्या होगा लेबर रूम में। मतलब मैं एक 36 आवर का लेबर गुजार के आई हूँ, तो अब क्या होगा। 10 महीने बाद फिर से मुझे उस लेबर रूम की शक्ल देखनी पड़ेगी, विच वाज मतलब वो एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेस था मेरे लिए। मैं मुझे वो दीवारें, वो सब चीजें एक अलग ही किस्म का पीटीएसडी था। तो उसने जो है मेरे दोनों बच्चों को काफी एंशियस रखा शुरू में। And then I started doing these yogas, and I everybody could see कि मैं struggle कर रही हूँ बच्चों के साथ। तो people who felt it, मेरी दोस्त ने मुझे हेल्प की, uh, मेरे हस्बैंड ने मुझे हेल्प की, मेरी सास ने मुझे हेल्प की। एंड आई स्टार्टेड अटेनिंग वो 3 मंथ्स का जो पीरियड होता है, उसके बाद आई स्टार्टेड कलेक्टिंग माई सेल्फ, एंड आई स्टूड अप फॉर माई किड्स कि अब मुझे इनका ख्याल रखना है। और आपका, क्योंकि आपका ब्रेन आपको कॉन्स्टेंटली कह रहा होता है कि ये बच्चे आप ही की जिम्मेदारी हैं, दे कांट eat on their own, they can't sleep on their own, so you have to give them comfort। आप, तो आई स्टार्टेड फीलिंग कि जब मैं रिलैक्स हूँ और मैं उन्हें आराम से प्यार से सुला रही हूँ, तो वो जल्दी सो जाते। और जब मैं एंशियस हूँ और मुझे जल्दी है किसी चीज की, कि भाई मुझे अभी दूसरे वाले बच्चे को खाना खिलाना है तो ये सो जाए, तो वो नहीं होता। शी स्टार्टेड क्राइंग, शी डजंट वांट टू टेक फीड। अब क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा है कि वो मुझे दूसरे बच्चे को देखना है, सो यू नो वो कनेक्शन ब्रेक हो रहा है। और आई हैव टू थिंक अबाउट हर, कि मैं आई एम फीडिंग हर, सो आई शुड बी थिंकिंग अबाउट हर वेलनेस। तो ये चीजें थी जो यू नो आई फेल्ट के है। और अभी भी आई फेल्ट कि मैं जब किसी चीज की वजह से गुस्से में होती हूँ, तो बच्चे भी स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग दैट इमोशन। और अगर मैं कामली उनको जवाब दे रही हूँ, तो वो भी, क्योंकि अभी उनका अर्ली ही स्टेजेस चल रही हैं ब्रेन डेवलपमेंट की, तो ये हम लोग काफी मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मेरे इमोशन से उनका काफी कनेक्शन है। अगर उनके फादर या उनकी दादो कर रही हैं, तो उसका इतना इम्पैक्ट उनके ऊपर नहीं पड़ रहा होता। अगर मैंने उनको किसी चीज के ऊपर नो कह दिया या मना कर दिया है, उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है, उसका एक अलग इम्पैक्ट उनका शो होता है, कि मम्मा की तरफ से मम्मा एंग्री कैसे हो सकती है। मतलब उनके जहन में कि मम्मा एंग्री नहीं हो सकती, मम्मा प्रोग्राम्ड हैं कि वो हमें हमेशा प्यार करें, और हमें वो कैसे हटा सकती हैं और कर सकती हैं। तो वो एक अलग ही उनका ट्रॉमा होता है, और वो दिखता है कि वो मेरी वजह से ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं एज कंपेयर टू कॉन्फ्लिक्ट विद अदर पीपल। सो या, it definitely affect their tiny brain when you are not in your right mind। इट्स वेरी एक्यूरेट। जैसे वी यूज टू से अम्मी बीमार कैसे हो सकती है, इट्स वेरी Yeah। usual. We also used to say that, and it's same with the tiny ones of yours. Given your experience, Nida, what do you think should be considered to better support mothers in engaging in managing their stress and protecting their brain health too?
I guess you need to build a strong community. क्योंकि मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे पास मेरी किसी भी दोस्त का एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। ऐसा सिर्फ एक ही दोस्त का हुआ था, एंड शी लॉस्ट हर बेबी अनफॉर्चुनेटली। तो मैं उससे ज्यादा बात भी नहीं कर सकती थी इस बारे में। लेकिन जो है वो मेरे बाद जब मेरी सेकंड प्रेगनेंसी हुई एंड आई वाज सफरिंग विद दिस ब्रेस्ट फीडिंग का जो एक डिलेमा था, तो जो मेरी दूसरी दोस्तों ने किया था, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। मेरी एक बचपन की दोस्त है, उसने मुझे बहुत हेल्प की। उसने मुझे पॉजिटिव चीजें बहुत बताई, और जो उसने मुझे इस चीज के ऊपर वो रखा कि नो, यू हैव टू फीड हर बिकॉज इट्स गुड फॉर यू एज वेल, नॉट ओनली फॉर हर। सही है, तुम्हारा डिप्रेशन, तुम्हारी चीजें देन आई स्टार्टेड रीडिंग ऑन इट कि इट डज हेल्प विद ब्रेस्ट फीडिंग। आपके कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं, आपके डिप्रेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। यू स्टार्ट बॉन्डिंग विद योर किड अ लॉट, क्योंकि आपका उस वक्त का सारा स्ट्रेस ये होता है कि आप अपने बच्चे के साथ कैसे बॉन्ड कर रहे हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प्स विद दैट थिंग। फॉर्चुनेटली मैं एक बहुत अच्छे हाउस होल्ड में गई, और दे टुक केयर ऑफ मी अलॉट। लेकिन दिस इज नॉट द केस फॉर मेनी ऑफ अस। ये बस कुछ फ्यू पीपल आर लाइक दैट जिनको मिल जाता है इस तरह का। लेकिन हाँ, आई हैड टू फेस माई ओन थिंग्स इज वेल, क्योंकि मैंने मतलब आई हैव ऑल्सो हर्ड ऑल द कॉमेंट्स दैट मदर कैन पॉसिबली हियर। तो वो भी मैंने भी सुना है, ऐसा नहीं है। तो ये है कि पहले तो हमें जो है ना, लोगों के अंदर इस चीज की एक्सेप्टेबिलिटी लानी पड़ेगी कि भाई मैं अगर माँ बनी थी तो मेरे साथ ये हुआ था, तो वो चीज मैं सामने वाले के साथ ना होने दूं। ठीक है, एक कम्युनिटी बिल्ड करनी पड़ेगी कि जी व्हेन समथिंग दिस हैपेंस, जैसे कि पुराने जमाने में होता था, सारी औरतें जमा होती थी, आके कंफर्ट करती थी, महीने तक जो है 40 दिन तक आपको आराम दिया जाता था। नानी दादियां सब घर में आके रुकते थे बच्चे को देखने, विच हैपेंड विद मी एंड आई फेल्ट द डिफरेंस, क्योंकि वो मेरी अम्मी के साथ नहीं हुआ था। तो हम लोग का एक अलग बचपन का ट्रॉमा है। और जो मेरे साथ ये हुआ कि क्योंकि आई बिलोंग टू दिस फॉर्चुनेटली दिस फैमिली, तो सब बड़ी बूढ़ी सब लोग आए। एट सम पॉइंट सब कुछ ये भी कहेंगे कि हाँ यार, जब वो आते हैं तो दे से अ लॉट ऑफ स्टफ यू डोंट लाइक, और उस वक्त आपको रिलैक्स चाहिए होता है। सो फॉर मी, मेरे केस में ये था कि दे ऑल केम टू अवर हाउस एंड दे टुक केयर ऑफ माई चाइल्ड, एंड आई हैड अ गुड स्लीप फॉर एटलीस्ट 1 मंथ। तो मुझे सोने को दिया जाता था कि भाई तुम सो लो, ताकि पूरा दिन तुम बच्चे को देख सको। ठीक है। तो अब ये होता था कि अब ये है कि इस तरह से हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी कम्युनिटी में काम करना पड़ेगा। सेकंड, अवेयरनेस नहीं कहूंगी मैं, विलिंगनेस टू टेक अवेयरनेस इज द की। आप अवेयरनेस के ऊपर बहुत काम हो रहा है। मसला सिर्फ ये है कि कोई भी विलिंग नहीं है कि वो अवेयरनेस ले, स्पेशली योर काउंटर पार्ट। ठीक है, उनको लगता है बच्चा पैदा करना मेरा काम नहीं है, इस लिहाजा मुझे इस इंफॉर्मेशन की क्या जरूरत। बच्चे का डायपर चेंज करना मेरा काम नहीं है, तो मैं मुझे इस चीज की क्या जरूरत। तो ये इस चीज को हमें खत्म करना पड़ेगा कि आपको विलिंग होना पड़ेगा। बच्चा अगर आप और लोग चाह रहे हैं, आजकल मैंने देखा है बोथ द पेरेंट्स आर वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड दे आर इन्वॉल्विंग इन दिस थिंग कि भाई हमें अपने बच्चे को देना है। सब बोथ द पेरेंट्स, दोनों तरफ से अटेंशन मिले। तो उसके लिए जरूरी है कि आप विलिंग हो कि भाई अगर बच्चा मुझे पैदा नहीं भी करना, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि बच्चा और एक माँ किस चीज से गुजर रही है। सही है, जब वो 9 महीने की जर्नी ले सकती है, तो मैं 9 महीने को 9 मिनट में क्यों नहीं पढ़ सकता? मैं क्यों नहीं समझ सकता? मैं क्यों ना जानना चाहूँ कि क्या होता है? तो ये एक चीज मुझे लगता है, ये दो चीजें आपको कम्युनिटी होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड, आपके पास जो है विलिंगनेस के ऊपर काम होना चाहिए।
कि आप सिर्फ अवेयरनेस पे नहीं, इस चीज पे काम होना चाहिए कि सामने वाला खुद चाहे कि वो इस चीज की इंफॉर्मेशन ले, और अगर वो नहीं ले रहा तो देयर शुड बी अ बम्बार्डमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन विदाउट बी विदाउट कॉजिंग इट अ टैबू। अच्छा, तीसरा ये कि आपका जो है ना काउंसलिंग का सिस्टम को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट के अंदर। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, औरत नेचुरली रिकवर हो जाती है। अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि स्ट्रेसेस बहुत अलग है, चीजें बहुत मसला कर रही हैं, नस्लें खराब हो रही हैं इस चक्कर में। ये चीज जब एक चीज हो चुकी है, आइडेंटिफाई हो चुकी है, रिसर्च हो चुकी है, पब्लिश्ड हो चुकी है, तो हम इसके ऊपर क्यों काम नहीं कर रहे? जब हमें पता है कि ये एक सिस्टम है, नेचुरल तो है सब कुछ, लेकिन जो नेचुरल के साथ हम कर रहे हैं उसके करने के ऊपर हाउ इट इज इम्पैक्टिंग द न्यू लाइफ, और वो न्यू लाइफ आगे की न्यू लाइफ के साथ क्या कर रही है, तो वी शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि हैं चीजें जो कि वी शुड वर्क ऑन इट। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द मदर्स वुड एग्री विद मी ऑन दिस थिंग कि विलिंगनेस जो है अवेयरनेस की, वो बहुत जरूरी है कि आपका काउंटर पार्ट भी उसी तरह से आपकी इंफॉर्मेशन ले रहा हो जिस तरह से आप ले रहे हैं। नॉट इवन द काउंटर पार्ट, ऑल ऑफ द पीपल लिविंग इन योर होम, अगर वो आपके साथ हैं और आपके साथ ये चीज हो रही है, आप लेबर रूम से आ रहे हो, तो आपके ऑल ऑफ द योर फैमिली शुड नो व्हाट यू हैव बिन थ्रू, and how difficult it must be for you and how difficult it will be for you for next couple of months. Yeah. वेरी एक्यूरेट निदा। विद दैट, इसमें जो आपने मेंशन किया कि आपकी सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, विद दैट कम्युनिटी बिल्डिंग भी आ गई और सारी चीजें जो मिस कर रही होती हैं मदर्स मोस्टली, वो सेल्फ केयर है। तो Yes. ये जो सारी कॉन्वर्जेशन है, बिफोर वी रैप अप, डू यू हैव एनी फाइनल थॉट्स और एडवाइसेस फॉर एक्सपेक्टिंग और न्यू मदर्स दैट यू वुड लाइक देम टू नो? Yes, coming to your point, self-care. At first, it was like I said, pregnancy एक बहुत ही मिक्स्ड इमोशन होता है, तो उसमें आप कहीं खो जाते हो, आप अपने लिए करना छोड़ देते हो, आप अपने लिए सोचना छोड़ देते हो। एंड आई बिलीव इट्स नॉट बिकॉज यू बिकम, इट्स नॉट कि आप जानबूझ के ही कर रहे हो, तो इट्स हाउ यू आर प्रोग्राम्ड। तो ऐसे में आपका सेल्फ केयर का ख्याल आपके काउंटर पार्ट को होना चाहिए, आपके साथ रहने वालों को होना चाहिए, कि वो आपको स्पेस दें ताकि आप, सेल्फ केयर का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी क्लींजिंग करूं, जाऊं, बाल बनाऊं, तैयार हूं, लिपस्टिक लगाऊं। फॉर मी माई सेल्फ केयर वॉज कि मेरा हस्बैंड आता था घर ऑफिस से, तो मुझे आधा घंटा, जाओ, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। आई यूज टू लाई डाउन इन माई बेड, कमरा बंद करके, माइग्रेन का बहुत इशू था, लाइटें शाइटें बंद की, एंड आई जस्ट यूज टू लाई डाउन फॉर हाफ एन आवर। ठीक है, तो दैट वॉज माई सेल्फ केयर, क्योंकि उस वक्त आई रियली वॉन्टेड अ क्वाइट स्पेस विदाउट एनी लाइट। पूरे दिन का वो रोना, पूरे दिन की बात, अभी भी माई किड्स टॉक टू मी अ लॉट, और कभी कभी एक टाइम आता है वेर आई जस्ट वॉन्ट कि आवाजें बंद हो जाएं, बस किसी थोड़ी देर के लिए, आई जस्ट वॉन्ट टू गो इन अ क्वाइट प्लेस, एंड दैट इज माई सेल्फ केयर। तो सेल्फ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नॉट जरूरी नहीं है दैट यू हैव टू गो टू अ पार्लर टू फील दैट कंफर्ट। If you're going in your blanket and you're lying down for a couple of minutes or half an hour, I think you're doing something for yourself. So thinking about yourself is very important. You're correct, and I struggle with it too, क्योंकि मैं एक इस तरह का बंदा हूँ जो बिल्कुल सेल्फलेस है। मेरी नेचर ही इस तरह की है कि मैं आई पुट अदर्स बिफोर माई नीड्स, और हमेशा से ऐसे ही। तो फॉर माई किड्स इट हैज गॉन टू अनदर लेवल। अब इसमें ये है कि इसी चीज को अगर मैं आगे लेके चलूं, तो मैं ये चीज की एक एक
छोटा सा I'm going to share a small conversation between my husband. तो शुरू में जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई और बच्चा मतलब मेरा बेटा आ गया, सो उसके पहले महीने में क्योंकि मेरी एंजाइटी इतनी थी, टेंशन सब कुछ, so Hadi, my husband and I had a small argument, and I said to him, why are you not why are you not coming to this state of being father? Why do you still have that thing in your mind that you're not father, and you have to start thinking about it? Your child is in your hands now, so you need to think about him. You need to put his needs at first. So it was. So he replied to me that every person doesn't have the same curve, and it struck me कि he's right. मैं एक पीरियड से गुजरी हूँ 9 महीने के. मैंने मैंने एक प्रोसेस गुजारा है. देन आई हैव अटेन्ड इट. वो उस प्रोसेस से गुजरा ही नहीं है. ही हैजंट बिन इन दैट प्रोसेस फॉर 9 मंथ्स. वो उसने सिर्फ मेरी टेक केयर की है, उसने बच्चे की कोई टेक केयर नहीं की. उसको अंदर वो फीलिंग नहीं है अभी. उसको मैं ये उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि 1 महीने के अंदर वो सब बिल्कुल ही चेंज हो जाए. ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा कर ले. So my curve was like this, but his curve was like this. So उसका कर्व और मेरा कर्व डिफरेंट चल रहा था. Now उसके 2-3 महीने बाद he started connecting to the child as well. जब मैं अपनी बॉन्डिंग की बात करी तो he was also struggling with the bonding. मेरे पास तो फिर भी बहुत सारे टूल्स हैं कि मैं उससे बॉन्ड कर सकती हूँ. मैंने उसे पैदा किया है, 9 महीने रखा है, उसे फीड कराया है, उसको पहले सबसे पहले देखा है, उसने सबसे पहले मुझे देखा है, बच्चे ने. तो इट वाज डिफरेंट फॉर हिम, एंड इट्स मतलब मेरे लिए इट वाज न्यू, एंड इट वाज स्ट्राइकिंग कि यस, हर बंदे का कर्व अलग होता है. सो आई एम गोइंग टू टेल दिस टू एवरी मदर आउट देयर. इफ इवन इफ यू आर नॉट फीलिंग अप टू दैट मार्क कि भाई मुझे इतनी केयर करनी चाहिए अपने बच्चे की, तो हर बंदे का कर्व अलग चल रहा है. योर एक्सपीरियंसेस, योर लाइफ, योर थिंग्स आर डिफरेंट, योर चाइल्ड इज डिफरेंट, यू योर सेल्फ आर डिफरेंट. You don't have to be like me, I don't have to be like you, but the only thing that stays same among us are the stresses and how we have to go through with them. To self care, talking to people, and getting yourself aware is I believe the are the tools that you can use to get yourself to a comfort place in your motherhood. Yeah. Thank you so much, Nida, for sharing your story and valuable insights. To all the moms and moms to be out there, remember taking care of your brain is taking care of your baby's future. Stay mindful, stay healthy, and support each other. Join us for more discussions during Brain Awareness Week. Until next time, take care and stay strong. Listen to this episode and share it with Uh, your moms in your life. Thank you.